So exercise number 5.2 we are going to continue in this the second question, that is choose the correct option. In that the first question of choose the correct option is 30th term of an AP that we have to find, and options are given below. So what is AP? AP is 10, 7, 4 and so on, and we have to find the 30th term. It means A30 we have to find. So here A is given, D is given, everything is given. I am not writing anything, I am just writing the formula, that is An equal to A plus N minus 1 D. Now we know the answer, that if we want to find the A30th, so it means A30 we have to put, and we know the direct formula of A30, that is A plus 29 D. Now A30, that is equals to, what is the value of A? That is 10, the first term, right? Plus 29 as it is. And what is the value of D? D is the difference between these two, and that is minus 3. When we subtract 7 from 10 from 7, and we'll get minus 3 here. So the answer is 10 minus, let's multiply 63 3s are 9, 87. So answer is 87, right? 7 3 is 27 and 6 7 8, yeah. So 10 minus 87 will be 77, but of minus, so answer is minus 77. A30, that is equals to minus 77. So here the option is option number C. Similarly, let's see the question number second, that is what is given here. We have to find the 11th term. AP is minus 3, minus half, 2 and so on, and we have to find the 11th term, that is A11 we have to find. I am directly writing the formula to find 11th term, that is A11 is equals to A plus 10D. Now value of A is minus 3 here, right? The first term is minus 3, so let me write minus 3, 10 as it is, and value of D, now we have to subtract this 2. So let me show you first. Minus half minus minus 3, so minus half as it is, minus minus will be plus 3. If we solve this 2, so minus plus 6, minus 1 plus 6 upon 2. I have taken the LCM, and final answer will be 5 upon 2. So the difference will be 5 upon 2. You can show this calculation on the rough side of your page, or you can do on the question also, in the question also. That is depends totally on you. So the difference is 5 upon 2. 2 ones are 2, 2 5s are 10. Minus 3 will be as it is, plus 5 5s are 25. Minus 3 plus 25 will give you plus 22. Therefore the 11th term of an AP is 22. So the option number B is the correct answer. So let's see the question number third. We have to find the missing term. So in first question, 2 is given, then there is a box, and then the last term or the third term is 26. So we have to find the second term, because यहाँ पे second term missing है, box second term की जगह second place पे बना हुआ है. So A की value given है, that is 20, sorry not 20 but it is 2, and आपको A3 given है, that is 26. आपको find क्या करना है? A2 find करना है. क्या find करना है? A2. So देखो, अब आपको A3 का वैल्यू गिवन है, तो A3 का पहले अपन वैल्यू लिख लेते हैं. A3 इज इक्वल्स टू होता क्या है? A प्लस 2D होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला. A का वैल्यू आपके पास है, दैट इज़ 2 एज इट इज़. D का वैल्यू आपको पता नहीं है, और A3 की जगह तो आप 26 पुट कर सकते हो, ठीक है. देयरफॉर ये 26 एज इट इज़, ये 2 जो है वो माइनस में आ जाएगा इस साइड, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 2D.
अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी 24 एंड ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू डी। ये 2 1 ज़ा एंड ये 2 के टेबल में 12 ज़ा होगा, सो वैल्यू ऑफ डी विल बी 12। सो आपको डी की वैल्यू मिल गई। आपके पास अगर ए और डी की वैल्यू होती है तो आप कोई भी टर्म फाइंड इजीली कर सकते हो। तो अब आपको a2 फाइंड करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। सो a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। अब आपका a आपके पास है दैट इज़ 2, d आपके पास है दैट इज़ 12। अगर इस दोनों को प्लस कर दोगे यू विल गेट a2 इक्वल टू 14। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जो आपको पूछा गया था। इसी तरीके से अपन क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते इसी का। जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या बोल रहे हैं, उसमें आपको फर्स्ट टर्म ही बॉक्स बना हुआ है, इट मीन्स वही मिसिंग है। सेकंड टर्म 13 है, वापस एक बॉक्स बना हुआ है एंड लास्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म आपको गिवन है दैट इज़ 3। तो इससे क्या करना है, आपको इस दोनों की हेल्प से आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी रहेगी। तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। a2 गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 13 और आपको गिवन है a4 दैट इज़ इक्वल्स टू 3। देखो काउंट करें 1 2 तो a2 गिवन है, फिर 3 और ये 4 तो ये 4 गिवन है। अब हम a2 की वैल्यू जानते हैं। a2 इज इक्वल्स टू होता क्या है, a प्लस डी होता है। तो a2 की जगह पे यहाँ 13 पुट कर देंगे दैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस डी। यहाँ इसमें से कुछ भी वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम एक इक्वेशन जैसा बना के इसको नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से a4 का वैल्यू जो हमारे पास है वो 3 है, तो a4 का एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस 3d होता है। अब a4 की जगह पर 3 पुट कर देंगे और यहाँ पे a प्लस 3d एज इट इज़, बिकॉज कुछ भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। और ये जो इक्वेशन बनी दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप देखो अच्छे से। पहले इक्वेशन मैंने फर्स्ट लिख ली, फिर ये सेकंड इक्वेशन इसी के नीचे। यहाँ एलिमिनेशन मेथड कैसे लगेगा, जो सेम टर्म्स होते हैं वो कट होते हैं बट यहाँ साइन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी। कैसे, तो देखो पहले इसकी साइन कौन सी थी, तो इसकी साइन पहले थी प्लस, अब ये प्लस हट के बन गया माइनस। यहाँ पे भी प्लस था, ये बन गया माइनस, और ये भी प्लस की साइन थी जो हो गई माइनस की। सो आपका अभी जो आंसर आएगा उसमें जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसमें ये वाला लास्ट जो साइन है माइनस वाला वो लगाना है। तो देखो ए प्लस का है और ये माइनस का है, ये हो गया कट। अब ये 13 माइनस 3 लगाएंगे, ये वाली साइन जो मैं सर्कल बना रहा हूँ ये साइन यूज़ नहीं करनी है, ये पुरानी साइन है, आपने साइन चेंज कर दी तो अब नई साइन जो नीचे वो यूज़ करनी है। तो 13 प्लस की साइन थी, माइनस 3 करना है तो आपका आंसर आएगा 10। ये तो आपका 0 हो गया, और प्लस डी माइनस 3d तो माइनस 2d आंसर आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10 अपॉन माइनस 2 जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, जब आपका d का वैल्यू आपको मिल जाता है तो आप इस d का वैल्यू को किसी में भी पुट करके आप इसका फर्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हो, राइट। तो दो इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, दोनों इक्वेशन में कहीं भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो आपके पास d अवेलेबल है। अब आपको इसी d को पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन में 1 में पुट कर रहा हूँ, जिससे मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 13 इक्वल टू a प्लस डी था। देयरफॉर 13 एज इट इज़ दैट इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपको नहीं पता है और d का वैल्यू -5 है। ये -5 को अगर 13 के साइड लेके आओगे तो +5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू a। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 18 मिल गया। तो देखो फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना था ये वाला, तो ये फर्स्ट टर्म आपको मिल गया दैट इज़ 18। तो आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है। आपके पास अगर a है और आपके पास d है तो आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। तो a3 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। a की वैल्यू आपके पास है 18, 2 एज इट इज़, d का वैल्यू -5, 18 एज इट इज़, 5 2 ज़ा 10 बट ऑफ माइनस बिकॉज -5 था। तो इसका आंसर जो आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू 8। तो a3 भी आपको यहाँ से ईजिली मिल गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन जो है
उसमें भी देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। तो मैंने अभी बताया था या तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जैसे दो ही तरीके के मेथड इसमें अप्लाई होने वाले हैं ये 5 क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन जो फिफ्थ है और ये जो फोर्थ, सॉरी क्वेश्चन थर्ड एंड जो क्वेश्चन फोर्थ है, ये दोनों ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन जैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, भले कितने ही बीच में टर्म्स दे दिए बट मेथड वैसा ही लगेगा। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ वाला, ये जो है जो हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर सेकंड उसके जैसा है। तो आप ऐसा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। तो हम क्वेश्चन पहले थर्ड ट्राई कर लेते हैं, आपको समझा देता हूँ थर्ड क्वेश्चन वैसा है या नहीं। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है a इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे सेकंड थर्ड फाइंड करना है और फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब a4 इक्वल्स टू 9 1/2, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है इसमें सेकंड एंड थर्ड टर्म। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अच्छा, फाइंड क्या करना है वो भी लिख देते हैं अपन। आपको फाइंड करना है a2 एंड a3, ये दो चीज़ आपको फाइंड करनी है। चलो पहले a4 का फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। अब a का वैल्यू आपके पास है 5 और d का वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन a4 का वैल्यू तो आपके पास है ना। अगर चाहो तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 9 2 18 प्लस 1 19, तो ये हो जाएगा 19/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 19/2 एज इट इज़ -5 हो जाएगा, जो +5 सेड आ गया तो इक्वल टू 3d। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 19 - 5 2 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 3d। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 - 10 करेंगे तो 9 हो जाएगा /2 और ये 3 भी अपॉन में आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू d। ये 3 1 ज़ा, ये 3 के टेबल में आ जाएगा 3 ज़ा। तो फाइनल d का जो वैल्यू आएगा आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा है। जो फाइनल आपका d का वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी d इज इक्वल्स टू 3/2। ये आपका जो d का वैल्यू है इसको आपको पुट करना है सेकंड और थर्ड के लिए, मतलब जो आपको फाइंड करना है उसके लिए, ठीक है। तो आपका d का वैल्यू आपके पास आ गया, आपका a का वैल्यू आपको गिवन था। अब आपको a2 फाइंड करना है तो सिंपल है, a प्लस t फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3/2। इसको एलसीएम देंगे, सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 प्लस 3/2, 13/2 विल बी द आंसर। ये आपका a2 का वैल्यू मिल गया। इसी तरीके से हमारा a3 भी मिल जाएगा, दैट इज़ a प्लस 2d। a का वैल्यू आपके पास 5 है प्लस 2, d का वैल्यू आपके पास है 3/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसल आउट, तो ये 5 प्लस 3 इट विल बी 8। सो a3 दैट इज इक्वल्स टू 8। सो ईजी था क्वेश्चन, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसा ही, पहले हमने डी फाइंड कर लिया फिर उसको पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अभी क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ दैट इज़ योर होमवर्क। ये इसका जो भी आंसर आएगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर आ रहा है, राइट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में पहले ही ब्लैंक है, मतलब आपको ए तो फाइंड करना रहेगा। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। a2 गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 38, तो इसके पहले वैल्यू लिख लेते हैं। a2 का फॉर्मूला होता है a2 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। अब यहाँ पे a2 की वैल्यू है 38 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस डी। देखो ये इक्वेशन आपकी पहली बन गई, दैट इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 1। ना अब आपको लास्ट टर्म गिवन है तो पहले काउंट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये सिक्स टर्म गिवन है। a6 दैट इज इक्वल्स टू -22, देयरफॉर a6 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस 5d। तो a6 की जगह अपन पुट करेंगे -22 दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 5d। ये आपका इक्वेशन नंबर आ गया 2। अब आपको पता है सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। अब पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, 38 इज इक्वल्स टू a प्लस डी। फिर इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं, -22 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d।
अब आपको पता है साइन चेंज करनी है, तो जो साइन मैं अभी लगा रहा हूँ वो साइन चेंज वाली लाइन साइन है, मतलब अभी यही आपको कंसिडर करनी है। ये माइनस और यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया कट, माइनस 4 माइनस वन, सॉरी 5 माइनस वन तो 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा बिकॉज 5 का साइन बड़ा है, 5 खुद बड़ा टर्म है एज़ कम्पेयर टू 1। और यहाँ पे दोनों प्लस करेंगे तो 8 + 2 हो गया 10, 5 + 1 6। चलो 60 इज इक्वल्स टू -4d। तो d का वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगा, -15, राइट। आपको d का वैल्यू मिल गया है, तो आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, पुट d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 38 इज इक्वल्स टू a प्लस d। Therefore 38 as it is, that is equals to a प्लस d का वैल्यू आपको पता है -15 है, तो आपका 38 एज इट इज़ रहेगा। अच्छा एक काम करते डायरेक्ट लिख लेते थोड़ा यहाँ पे, 38 -15 को इधर लेके आएंगे, +15 हो जाएगा और इक्वल टू a। अब देखो 38 + 15 करेंगे तो 8 + 5 होगा आपका 13, 4 + 1 5, ठीक है, और +1, ठीक है, तो ये आ गया 53। तो आपका a का वैल्यू क्या आ गया, 53। फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। आपको अभी सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो a3 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू a + 2d। तो ये a + 2d करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास है 53 + 2, d का वैल्यू आपके पास है -15, 53। अब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज -15 है, तो हो जाएगा -30। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 - 0 विल बी 3, 5 - 3 विल बी 2। सो a3 इज इक्वल्स टू 23। अब a3 भी मिल गया। अब आपको फाइंड करना है, जो आपको करना है खुद को, a4 एंड a5, ये दोनों को आपको फाइंड करके मुझे बताना है। दिस इज़ योर वर्क। थैंक यू सो मच।